Students, so today we will read lesson 7 from your Footprint Without Feet book. The name of the lesson is The Necklace. This lesson is in the syllabus for the second term. So let's see the introduction of the story first, students. This story is basically about a woman whose name is Matilda, and she is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and lose it. So now you have to read the story and find out what would happen next in the story. So let's start. Student, this story is a very long story, so we will read this story in two parts. In first part we would complete its first part, and next part we would complete its first part. After reading the story, you have to find out these things. What kind of a person is Mame Loisel? Student, double M-E is pronounced as Mame, and this word is used in France or in some neighboring countries of France, as a symbol of respect for women, such as here in India we use Mrs. Just like that, in place of Mrs. in such countries we use Mame Loisel. So Mame Loisel is basically the name of Matilda after her marriage. उसके शादी के बाद उसको मेम लोएसल, जैसे अब यहाँ पे किसी ने मिस्टर अग्रवाल से शादी कर लिया कोई वुमेन, तो उसका नाम शादी के बाद मिसेज अग्रवाल हो जाएगा, तो हस्बैंड का सरनेम जो है वो जुड़ जाता है. इट्स लाइक दैट. तो मेम लोएसल, लोएसल जो है वो सरनेम है विच इज़ द सरनेम ऑफ हर हस्बैंड. Why is she always unhappy? That's what you have to find out in the story, and then you also have to find out what kind of a person is Matilda's husband. So let's read the story paragraph by paragraph. These days many of you wonder the question, why is the need to read the literature stories paragraph by paragraph? Well, while in your books the Hindi meaning is, the Hindi explanation is already given. देखो आजकल बुक में हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले से ही दिया हुआ रहता है, तो फिर पॉइंट क्या है, ये आपको लाइन बाय लाइन ऐसे खुद से पढ़ना. देखो लिटरेचर में आपको खुद से पढ़ के समझ में आनी चाहिए. दैट्स द मेन एम. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज अ स्किल, अगर आप स्किल के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आपको लाइन बाय लाइन जो है वो खुद से पढ़ के समझ में आना चाहिए. ये एम होना चाहिए आपका अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, एंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज द नीड ऑफ द टाइम in present time because it is an international language. So everybody need to learn English language. You have only two options, whether make your language as the international language or learn international language. First option is rather difficult in present time, you can say it's like impossible. So the second option, the easier one, learning English language, which almost every people is doing nowadays. Almost many of you have already learned English language. It's not a thing to feel proud, but I would say it's the thing which is needed in present time to be materialistically successful person. So let's start the story. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. So about whose the paragraph is talking, the first line is talking about Matilda. Matilda के बारे में बात हो रही थी कि एक बहुत ही प्रीटी यंग लेडीज़ है जो जिसका जन्म हुआ है बाई फॉल्ट एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में. इट मीन्स कि वो मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हो गया, और इसको जो है वो क्या बोला गया, एरर ऑफ डेस्टिनी. इट मीन्स कि वो जितनी ब्यूटीफुल थी उसको किसी रीच फैमिली में पैदा होना चाहिए था. दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से. She had no Tory, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. और सबसे बुरी बात तो ये थी कि अभी जो उसका जन्म हुआ था वो तो पुअर फैमिली में हुआ ही था, बट उसके लिए ये चांस भी नहीं था कि वो शादी के बाद भी किसी रीच फैमिली में पहुंच पाए, क्योंकि उसके घर वालों के पास इतनी डॉरी नहीं थी कि वो दहेज, इट मीन्स टू से कि वो किसी बड़ी फैमिली को देते और उसकी शादी वहाँ पे हो जाती. तो इस बात का भी कोई चांसेस नहीं था कि वो किसी रीच, लव्ड या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन से उसकी शादी हो. डिस्टिंग्विश्ड मीन्स टू से दैट स्टूडेंट रिनॉन्ड, जाना माना. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. तो उसका शादी जो है वो एक क्लर्क से हो जाता है, जो कि आपका कहाँ पे क्लर्क है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में. इट मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो जो है वो आपका क्लर्क का काम करता है. एंड इन द स्टोरी इट हैज़ बीन रिटन ही वॉज अ पेटी क्लर्क. पेटी मीन्स टू से दैट कि बहुत ही कोई अच्छा कंडीशन में नहीं था, जिसकी ज़्यादा सैलरी नहीं रही होगी. मेटरलिस्टिकली यहाँ पे बात हो रही है. She was simple, but she was unhappy. Matilda was a simple girl, but she always remains unhappy because of her economical condition, and especially in the family in which she has married now. She suffered incessantly, feeling herself born
For all delicacies, luxuries, she suffered from the poverty of her apartment. The savvy walls and the worn chairs, all these things tortured and angered her. So basically देखो इसको लगातार परेशानी होती थी. As incessantly means to student continuously. What because she thought that ये मैटिल्डा को ऐसा लगता था कि वो सभी तरह की सुख सुविधाओं भोगने के लिए जो है वो जन्म उसका हुआ है. डेलिकेसीज मीन्स टू से दैट कि हाई फाई लाइफ, पोस्ट लाइफ, लग्जरियस लाइफ, लाइफ फुल ऑफ लग्जरी. बट उसको हमेशा ही पुअर्टी से उसके अपार्टमेंट में, मतलब वो एक पुअर अपार्टमेंट पे रहती थी, जो अपार्टमेंट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ. एंड उसके जो वॉल्स थे अपार्टमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, वॉल्स काफ़ी सैबी थे, इट मीन्स ओल्ड एंड बोर्न आउट. और जो चेयर्स था यहाँ तक कि उसके अपार्टमेंट में वो भी टूटा हुआ था. और ये सभी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान, टॉर्चर्ड फील करती थी. एंड दीज थिंग्स मेक हर एंग्री. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली का तो ड्रीम होता है कि वो एक शहरों में अपना फ्लैट खरीद सके और उसमें रह सके. यहाँ पे सी इज़ ऑलरेडी लिविंग इन एन अपार्टमेंट इन अ फ्लैट, बट स्टिल सी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज सी वॉन्ट्स मोर इन हर लाइफ लाइक एवरीबडी एल्स. दैट्स द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. द मोर दे हैव, द मोर दे वॉन्ट. Let's see the next paragraph. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither forks nor jewels, nothing. She loved only those things. स्टूडेंट व्हाट हैपन्स हियर कि एक सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिससे आपको उसका लाइफ स्टाइल समझ में आएगा कि उस अपार्टमेंट में अपने हस्बैंड के साथ किस तरह की लाइफ जीती है. कि अभी वो जनरली रात के टाइम में जो है वो अपने हस्बैंड के सामने डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर कर रही होती है. और उसका जो हस्बैंड है वो ट्यूरिन को अनकवर करता है. ट्यूरिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक डिश के लिए यूज हुआ है, थाली के लिए, ढक्कन के लिए एक डीप डिश होता है जिसमें आपका सूप सर्व किया जाता है. ऑल द हार्ड वर्ड्स स्टूडेंट्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट देयर. सो ट्यूरिन मीन्स होता है एक डीप डिश इन विच द सूप इज सर्व्ड. और उसको निकाल के जब उसमें से सुगंधित सुगंधित हवा आया तो उसके हस्बैंड के मुंह से निकला, ओ द गुड पॉट पाई, क्योंकि उसके अंदर पॉट पाई था. अभी पॉट पाई, पाई स्टूडेंट आपका बेक फ्रूट होता है, बट जो पाई पॉट में बनेगा, किसी बर्तन में बनेगा, उबाल के उसको बनाया जाएगा, उसको पॉट पाई बोलेंगे. तो you can see the picture of pot pie to understand. I know nothing better than that. She would think of elegant dinners. उसका हस्बैंड ये सब देख के बहुत खुश हो गया. और पॉट पाई को देख के उसके हस्बैंड का एक्सप्लेनेशन ये कि वाह, इससे अच्छा तो कोई चीज़ होता ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई चीज़ होता होगा. बट मैटिल्डा के दिमाग में ऐसा नहीं था. मैटिल्डा जो है वो अपने माइंड में बस एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी. वो हाई प्रोफाइल लोग जो 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं उस तरह के डिनर्स इसको चाहिए था, जो कि चमकते हुए चांदी के बर्तन में डिनर करे. सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसिट, इसको एक्सक्यूसिट पढ़ेंगे स्टूडेंट. फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, बहुत ही जबरदस्त मार्वलस थालियों में परोसे गए, उसको खाना ही बस खाना था. सी हैड नीदर फ्रॉक्स नर ज्वेल्स, बट उसके पास तो फ्रॉक्स भी नहीं थे और ज्वेलरीज भी नहीं थे. एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. सो दैट्स लाइक द नॉर्मल ह्यूमंस, व्हाट एवर यू जनरली लव, यू रेयरली एंड रेयरली गेट दोज थिंग्स. जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं वो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है. ऐसा बहुत सारे ह्यूमंस के साथ होते हैं. तो मैटिल्डा चाहती है कि वो एक लग्जरियस लाइफ जिए, उसके पास सब कुछ हो, टू जेट सब कुछ, बट उसके पास तो ज्वेलरीज भी नहीं है, फ्रॉक्स भी नहीं है. ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. सी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. So basically, students, what happens here that Matilda has a rich friend and she was her schoolmate basically at the convent. Convent क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपका कॉन्वेंट स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल्स, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, उनको हम लोग कॉन्वेंट बोलते हैं. हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट. अभी देखो ये इसकी जो ये स्कूलमेट थी, जो इसकी बचपन से एक रीच फ्रेंड थी, उसके पास वो नहीं जाना चाहती थी, उसके यहाँ विजिट नहीं करना चाहती थी. क्यों? क्योंकि उसके वहाँ जाने के बाद वो देखती थी कि बाओ इसके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं, ऑल द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स ही पोसेस्ड. तो ये देख के उसको बहुत अंदर से दुख होता था कि उसके पास नहीं है, वो ऐसी लाइफ नहीं जी पाती है. इसलिए उसके यहाँ से आने के बाद वो घंटों तक रोती रहती थी.
पूरा दिन उसका निराशा और डिसअपॉइंटमेंट में गुजरता था उसके यहाँ से आने के बाद, इसीलिए उसके यहाँ विजिट करना नहीं पसंद करती थी। डिस्पेयर मीन्स होता है स्टूडेंट होपलेसनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है दुख। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड, एक शाम क्या हुआ कि उसका हस्बैंड जो है वो घर पे बहुत ही खुशी खुशी आते हैं। इलेटेड मीन्स चीयरफुल एंड एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। एंड व्हाट ही हैज़ इन हिज हैंड देयर वाज अ लार्ज envelope, और वो अपने हस्बैंड को दिखाते हुए जो है वो अपनी वाइफ को यानी मैटिल्डा को दिखाते हुए वो उसको दे देता है उसके हाथ में जो एक बड़ा सा इन्वॉल्व था, लिफाफा, ये बोलते हुए हियर इज समथिंग फॉर यू। लिफाफा में क्या था? सी क्विकली ड्रू आउट अ पेंटेड कार्ड ऑन विच बट इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड्स। इंस्क्राइब्ड मीन्स होता है स्टूडेंट प्रिंटेड, कि ये लिखा हुआ था। एंड क्या लिखा हुआ था इस इन्वॉल्व के अंदर? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो। ये लेटर जो है वो आपका बेसिकली द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से था एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो की तरफ से था, जो इसकी वाइफ रही होगी मिस्टर की। एंड उस लिफाफे में ये लिखा हुआ था, जॉर्ज रैम्पोनियो जो है वो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मेम लोइशिल्स कंपनी मंडे इवनिंग। एंड यहाँ पे आप मिस्टर नहीं है मोनसायर भी पढ़ सकते हो, और इसके नाम का ये फर्स्ट इनिशियल लेटर है उसके हस्बैंड के नाम का, मैटिल्डा के हस्बैंड के नाम का, जो कि आपका ऐसा हो सकता है कि उसका नाम एम लॉयशल था। अभी फुल नेम जो है वो स्टोरी में नहीं दिया हुआ है, बट उसके वाइफ को मेम लगा देंगे, सबके वाइफ के साथ वहाँ पे मेम लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मिसेज लगा देते हैं। तो इन लोगों को मंडे के दिन जो है वो मंडे जनवरी 18 को मिनिस्टर के रेसिडेंस पे इनवाइट किया हुआ था एक पार्टी के लिए। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "Who do you suppose I want with that?" So basically देखो उसके हस्बैंड को लगा था कि मैटिल्डा ये देख के बहुत खुश होगी कि वाह उसको पार्टी में जाने का मौका मिला है, बट इसके ठीक कॉन्ट्रेरी मैटिल्डा ने बहुत ही नफरत के साथ स्पिटफुली में से तो स्टूडेंट होता है डिसडेनफुली, बहुत ही कंटेम्प्ट के साथ उसने जो है टेबल के ऊपर वो लिफाफा फेंक दिया। और वो क्या बड़बड़ाते हुए फेंकी? वो यह बड़बड़ाते हुए फेंकी कि तुमको क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूँ। तो बेसिकली उसका हस्बैंड रिप्लाई करता है, बट माई डियरी मीन्स टू से दैट कि समवन हु is a dear for you, you know, just आप प्यार से उसको deary बोल रहे हो। I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees. सो बेसिकली अभी देखो उसका हस्बैंड जो है वो उसको बोल रहा है कि अरे क्या हुआ, मैं तो लगता था कि तुम खुश होगी और तुम जनरली बाहर नहीं जाती हो, और ये एक ऐसा ओकेजन है और ये एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हमें बाहर जाने का। ऐसी ओकेजन पे तो सब लोग चाहते हैं, एवरीबडी विशेस कि इस तरह के किसी ओकेजन में जाए, और इसे बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को इन्वाइट किया गया है, सारे एम्प्लॉयज़ को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिस वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे सारे ऑफिस के लोग आए हुए हैं। सो इट वुड बी अ गुड ओकेजन फॉर यू टू गो। उसका हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसका हस्बैंड उसको इंटाइस करने की कोशिश करेगा कि वाओ यू शुड गो देयर इन दैट पार्टी। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। अभी उसके हस्बैंड ने जो कुछ भी बोला ये सब देख के मैटिल्डा जो है उसकी तरफ इरिटेटेड होकर देखती है और बोलती है बहुत ही अपना धैर्य खोते हुए इम्पेशेंटली कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, कि जब वो पार्टी इतना ग्रैंड है तो उसमें मैं क्या पहन के जाऊंगी। ऑफ कोर्स लेडीज़ लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, इफ़ दे हैव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी और पार्टी, व्हाट वुड आई वियर टू अटेंड दैट और टू गो देयर। सो मैटिल्डा के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया। अभी देखेंगे उसका हस्बैंड क्या बोलते हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड मीन्स टू से दैट स्टूडेंट की लड़खड़ाते हुए बोला, वो फॉल्टर्ड हुआ, व्हाई the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. So अभी उसका हस्बैंड उसको उस ड्रेस का सजेशन देता है जो ड्रेस पहन के ये लोग थिएटर में जाते हैं मूवीज़ देखने, और उसका हस्बैंड बोल रहा है कि ये ड्रेस जो है वो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife peeping. बट ये सुन के जो है मैटिल्डा रोने लगती है, और वो देख के उसका हस्बैंड जो है बिल्कुल चुप सन रह जाता है। फाइट मीन्स टू से दैट स्टूडेंट की जब आपको कुछ पता नहीं चला, हक्का बक्का रह जाओ, इन ऑ, इन शॉक, और वो ये सब देख के बहुत ही डिस्मे में भी हो जाता है, यानी निराशा में, डिस्पेयर में, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो रोने लगती है। अभी वो फिर से जो है वो हेजिटेशन के साथ बोलेगा। स्टैमर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो अपने वाइफ की कंडीशन को देख के खुल के कुछ सजेशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी उसके वाइफ ऐसी है कि कुछ भी वो बोलता है तो ठीक उसका उल्टा रिएक्ट करती है। तो ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स जो है वो हेजिटेट करेंगे। दैट्स व्हाट द कंडीशन ऑफ हर हस्बैंड हियर आल्सो। सो ही आस्क्स व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो वो दो बार एक ही बात को जो है वो जोड़ दे के बोलता है
तो उसको लगा कि शायद मैटिल्डा नोटिस नहीं कर रही है. सो व्हाट्स द मैटिल्डा's रिएक्शन टू दैट? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. So basically मटिल्डा ने जो है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा के, बहुत एफर्ट लगा के, अभी उसका एफर्ट लगाने को यहाँ पे वायलेंट एफर्ट लिखा गया है. इट मीन्स से आपको पता चल रहा है कि इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो कितना तंग आ चुकी थी. तो उसके अंदर जो वेक्सेशन हो चुका था, बहुत ज़्यादा वेक्सेशन मीन्स कि जब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हो और वैसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा एंग्रीली रिस्पॉन्ड कर दोगे. बट उसने अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए, अपने आंसुओं को, अपने भीगे हुए चिक्स को पोंछते हुए बहुत ही काम वॉइस में आंसर दिया, नथिंग, बस इतनी ही बात है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसीलिए मैं नहीं जा सकती. कंसिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज बेटर फिटेड देन आई. सो बेसिकली अभी जो है वो मैटिल्डा अपने हस्बैंड को इरिटेट होकर ये बोल रही है कि मैं उस पार्टी में जाने लायक नहीं हूँ, मेरे पास ड्रेस नहीं है, तुम ये अपने किसी और कलीग की वाइफ और कलीग को दे दो जिसकी वाइफ उस पार्टी में जाना ज़्यादा डिजर्व करती है, ज़्यादा फिटेड है, जिसके पास ड्रेस है, जिसके पास ज्वेलरी है. अफेयर मीन्स टू से दैट स्टूडेंट पार्टी, कोई भी ओकेजन को आप अफेयर बोल सकते हो. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल. सो बेसिकली देखो अभी उसका हस्बैंड ये सब सुन के बहुत दुखी हुआ. ग्रीव्ड मीन्स टू से दैट एक्सट्रीमली सैडेंड, बट उसने फिर भी जवाब दिया कि चलो देखते हैं मैटिल्डा कि हम लोग के पास कितने पैसे हैं, क्या हम लोग कुछ कॉस्ट्यूम सूटेबल खरीद पाएंगे उस ओकेज़न के लिए कि नहीं, जो उस ओकेज़न के लिए बेटर होगा. समथिंग सिंपल. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs is out to cover it. देखो जब उसके हस्बैंड ने पूछा कि लगभग कितना पैसा लगेगा तुम बताओ एक हम लोगों को सूटेबल ड्रेस खरीदने के लिए, तो इसकी वाइफ जो है वो बहुत ही सोच समझ के रिप्लाई करती है. वो देखती है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बता दूंगी तो ये अचानक से रिफ्यूज कर सकता है, फिर कोई एक्सक्लेमेशन दे सकता है, फिर कोई बहाना बना सकता है और ये मुझे जो है वो अच्छे से जो है वो शायद नहीं खरीद देगा, उसके बाद फिर ये प्लान भी कैंसिल हो गया. इसलिए बहुत सोच समझ के उसने जो है वो जवाब दिया कि 400 फ्रांसेस में जो है वो लगभग हो जाएगा ड्रेस. फ्रांसेस जो है वो आपका ऑफकोर्स फ्रांस में ये लोग रहते थे तो ये करेंसी है वहाँ की. ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. So basically देखो ये सुन के कि 400 फ्रांसेस लग जाएंगे टोटल एक अच्छा सूटेबल ड्रेस उस ओकेजन के लिए खरीदने में, ये उसके पति का चेहरा जो है वो उड़ गया, उसके चेहरे का कलर उड़ गया है. ही turned a little pale. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो इतना ही पैसा बचा के रखे हुए था नेक्स्ट समर में कोई हंटिंग पार्टीज ज्वाइन करने के लिए. 400 रुपीज़ उसको चाहिए था एक गन खरीदने के लिए. तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जो है वो बेकार की चीज़ों का इन लोगों को शौक था. वाइफ को जो है वो लग्जरियस लाइफ जीने का शौक था, हस्बैंड को गन खरीदना था क्योंकि उसको कोई हंटिंग पार्टी ज्वाइन करनी थी. ये क्या बात हुई? अभी हंटिंग करने के लिए आप पैसा जमा करो गन खरीद रहे हो. तो अभी इसके पास 400 ही था और वो 400 इसने गन के लिए रखा हुआ था. विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लाख ऑन संडे. तो बेसिकली देखो अभी ऐसा था कि ये जो है वो अगले संडे जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जाने की प्लानिंग बना रहा था. अगले संडे नहीं, नेक्स्ट समर के संडे में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाता जो कि हंटिंग पे जाते. क्या चीज़ हंट करने के लिए? लाक्स को हंट करने के लिए. अभी लाक्स क्या होते हैं स्टूडेंट? लाक्स एक बड़ा बड़ा बर्ड होते हैं. आपका फोटो जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है. नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress. बट फिर भी उसने अपने मन को मारते हुए अपनी वाइफ की इच्छा को पूरा करने का पहले सोचा. तो उसने सोचा कि ठीक है मैं तुमको 400 फ्रांसेस दे दूंगा बट तुम ये कोशिश करो कि तुम उसके बदले में कुछ अच्छी प्रीटी ड्रेस जो है वो खरीदो. सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन कि हम लोग इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है क्योंकि अगर पूरा स्टोरी हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. तो दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा. आज पहले ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे. पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आप पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हो. तो लेट्स होप स्टूडेंट कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आप जो है वो सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो चैनल को. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग.